अगर खिलाफ होना है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ होना है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब के इसी शेर के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। रेलवे भले ही दावे करता हो कि रेलवे में, रेलगाड़ियों में महिलाएं बेहद सुरक्षित हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पर जवानों को तैनात किया जाता है, लेकिन फिर भी कई तरह की घटनाएं घट जाती हैं। एक ऐसी घटना सामने आ रही है, हावड़ा से दुर्गापुर आ रही दुर्गापुर की निवासी आराधना चैटर्जी और उसकी मां के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आराधना चैटर्जी ने बताया कि जब वह हावड़ा से दुर्गापुर आ रही थी, दुर्गापुर पहुंचने वाली थी, तो उसी डब्बे में एसएसबी बटालियन का एक जवान धीरेन्द्र कुमार मिश्रा भी नशे में धुत पाया गया और नशे की हालत में उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसे पकड़ने की भी कोशिश की। विरोध करने पर वह बाथरूम में घुस गया और बाथरूम से जब उसे निकालने की कोशिश की गई तो उसने प्रहार कर दिया आराधना चैटर्जी पर। और इसके बाद डिब्बे में बैठे लोगों ने मिलकर जीआरपी से, अंडाल जीआरपी से इसकी शिकायत की और जीआरपी से शिकायत करने के बाद बिहार भोजपुर निवासी एसएसबी बटालियन का जवान धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे आसनसोल अदालत भेज दिया गया। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की माँ बेटी से जो आ रहे थे। दोनों आ रही थी हावड़ा से दुर्गापुर। आराधना चैटर्जी और उसकी मां से हमारे रिपोर्टर नवाब सिद्दीकी ने बातचीत की। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। প্রথমে জাঙ্গিয়া পরে ঘুরছিলেন, জাঙ্গিয়া বোঝেন তো, পড়েন তো আপনারা, জাঙ্গিয়া পরে ঘুরছিলেন উনি। প্রথমে ফিমেল প্যাসেঞ্জাররা কমপ্লেন করাতো, ওনাকে একটা বারমুডা পরানো হয়েছে। তারপর উনি খালি গায়ে ঘুরছিলেন, এত মদ খেয়েছিলেন পুরো শরীর লাল, না দাঁড়াতে পারছেন না উনি। যখন কমপ্লেনটা হয়েছে তখন উনি জামা পরাচ্ছে, উনি ইনচার্জে পড়ে, জামা পরার ক্ষমতা নেই। প্রচুর জন ছিল, পুরো ব্যাটালিয়ন ছিল। হ্যাঁ, B1 ছিল, পুরো ব্যাটালিয়ন ছিল। শিব কোথাও কালকা মালকা বাড়ি বাড়ি আছে, রসগোল্লার টিম ফিন নিয়ে ট্রাভেল করছে। কাল রাত্রে কালকা এক্সপ্রেসে আসছিল, রাত্রে ট্রাভেল করছিল। তারপরে ওনাদেরই কোনো একটা কি এসএসবি একটা কোনো ইয়ে আছে, ওখানে প্রথমে খুব ন্যাকেট অবস্থায়, মদ্যপ অবস্থাতে ঘোরাঘুরি করছিল, মানে যে জওয়ান আর কি এখন অ্যারেস্ট হয়ে আছে। তারপরে কিছুক্ষণ পর তার এবারে মানে কোনো রকম ভীমরতি চড়ে। সে আমার মেয়ে ঠিক দুর্গাপুর নামবার আগেই কোনো রকমে তার ইচ্ছে হয় যে বাজেভাবে অ্যাবিউজ করার চেষ্টা করে মেয়েকে। তো যাই হোক, ও কোনো রকম নিজেকে বাঁচিয়ে ও তখন চিৎকার করে, যখন অন্যান্য প্লেয়ারে বেরিয়ে আসলে ও বাথরুমে ঢুকে যায়। ও যখন বাথরুমে ঢুকে যায় তখন আমার মেয়ে গিয়ে বাথরুমেও ইয়ে করে, যে বাথরুম থেকে বের করবার জন্য নিয়ে বাথরুমের ওখানে গিয়ে পড়ে। ও আবার ওকে তখন এক লাত মারে মেয়েকে, আমার পায়ে করে মেরে তখন আমার মেয়েকে ফেলে দেয়। আমার মেয়ে উঠে ওকে ফের ওকে আবার বলেছে। যাই হোক, তারপরে ওনারা ইয়ে করেছেন, আমার মেয়েকে দুর্গাপুরে নিয়ে ওনাকে ইয়েও নিয়েছেন, আসানসোলে নামিয়ে নিয়েছেন। আবার আসানসোল থেকে অন্ডালে ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর ওনারা যে প্রসেসিং আমি যে এফআইআর করা লঞ্চ করা সেটা করছি। এই ধরনের ঘটনাকে কি বলবেন? মেয়েদের সুরক্ষা ব্যবস্থা এটা কি ধরনের ঘটনা? কোনো ধরনই পড়ে না, এটা কোনো ধরনই হয় না। এত নিন্দনীয় ঘটনা, এত নক্করজনক ঘটনা, যাদের উপরে ভরসা করে মানুষ, তা বলি কি ভালো মানুষ নেই, ভালো পুলিশ নেই, নিশ্চয়ই আছে, ভালো ফোর্স নেই, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এরম আমার মানুষের বেঁচে থাকা কোনো লাইফে কোনো রাইট নেই। ট্রেনের মধ্যেই যে ঘটনা, কতটা সুরক্ষা ব্যবস্থা মনে করছে ট্রেনের মধ্যে? সুরক্ষাটা তো তারপর এগুলো তো সব পুলিশ বা সুরক্ষা দিচ্ছে তা তো নয়, দিচ্ছে না তো নয়। তার মধ্যে তো দুজন বেরিয়ে এসছে এবং এখন একজন এখানে আরেকজন জওয়ান আছেন যিনি ওকে প্রচন্ডভাবে হেল্প করছেন, সেভ করছেন, এরকম নয়। কিন্তু এই বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষেরা, এটা তো ভদ্র সমাজে মানুষ নয়, এটা তো নর্মাল মানুষ নয়, কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ। আরো অন্যান্য তো आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर विभाग में कार्यरत देवेंद्र नाथ पटनायक की मौत के बाद उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने आज कॉलेज में आकर हंगामा किया और प्रबंधन से उनकी पत्नी को नौकरी देने की मांग की। इनका कहना है कि उनके घर में और कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो उनके परिवार का भरण पोषण कर सके, इसीलिए उनकी पत्नी को काम पर रखना बेहद ज़रूरी है। हालांकि प्रबंधन ने 2 दिनों का वक्त लिया है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उनकी पत्नी को यहाँ रखा जाएगा या नहीं। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें।
হবে হবে এখনই হবে হবে ওরা করবে করতে বাধ্য কেন করবে হবে না মানে হবে না মানে কি করে আমরা তো কোনো অ্যাবসার্ট চাইছি না ইলিগাল চাইছি না দেরি যখন হয়েছে না করলে এদের মুখের কথা কোনো দাম না মুখে তো যে কোনো জায়গায় দাম হয় না দেখুন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। আজকে আমাদের অন্যতম মেম্বার মিস্টার দেবেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক আর আমাদের মধ্যে নেই, এবং তার যারা কলিগ রয়েছেন, বন্ধু বান্ধব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন তাকে বাঁচাবার, কিন্তু ভাগ্যের নিয়তি, তো তাকে আমাদের হারাতে হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সমবেদনা রয়েছে, আমরা খুবই মর্মাহত। ওনারা মৃতদেহ নিয়ে এসে কলেজে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন? হ্যাঁ, উনি একমাত্র বাড়ির আর্নিং মেম্বার ছিলেন, সেজন্য ওনাদের একটা আবেদন রয়েছে যে যদি ওনার স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া যায়। তো স্যার, কর্তৃপক্ষ কি এই নিয়ে কিছু অপশন আছে? আপনারা কি চাকরি আমাদের ক্ষতিপূরণ দেবেন? আমাদের সমবেদনা রয়েছে এবং আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কারণ এর সাথে হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে হয়। আমরা হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো এই ব্যাপারে, যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ওনারা একটা অভিযোগ করছেন যে কাজের এত চাপ, মানসিক চাপ, তার জেরেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এবং কাজের চাপ সব জায়গাতেই আছে, কাজের চাপ, টাইম ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, এগুলো আমাদের ডিউটি পার্ট। কাজেই সেটা কতটা সত্যি এ ব্যাপারে, কাজের চাপ সব জায়গাতেই আজকাল আছে। আপনি জানেন গভর্নমেন্ট সেক্টরেও কাজের চাপ রয়েছে, প্রাইভেট সেক্টরেও কাজের চাপ রয়েছে, সব জায়গাতেই আজকাল কাজের খুব চাপ রয়েছে। তো সেটা একটা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বা টাইম ম্যানেজমেন্ট সেভাবে করতে হয় আমাদেরকে সব সময়। স্যার, সেটা আমার ক্ষেত্রেও চাপ রয়েছে। এনাদের বিষয়টা কি আপনারা তাহলে চিন্তা ভাবনা করছেন? হ্যাঁ, আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আপনার নাম? ডক্টর পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য, আসানসোল इंजीनियरिंग कॉलेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आसनसोल के पोलो ग्राउंड में जनसभा के दौरान हुंकार भरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, और उन्होंने अपनी सरकार के बारे में कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा लाभकारी योजनाओं को सामने रखा है और उनकी योजनाओं की वजह से आम लोगों को बेहद फायदा हो रहा है। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही और उन्होंने सबको धन्यवाद भी दिया। आपको बता दूं कि आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को यहां खड़ा किया गया था लोकसभा चुनाव में, और इस उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसके लिए उन्होंने यहां के लोगों को धन्यवाद भी दिया और योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी बातें रखी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। हालांकि हम आपको लाइव दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ खास तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं। সঞ্চালক নরয় ঘটক থেকে শুরু করে প্রদীপ মজুমদার থেকে শুরু করে সাংসদ সুনীল মণ্ডল, জেলা সভাধিপতি, এমআইসিরা, সিআইসিরা যারা আছেন, তাদের জন্য আমার অভিনন্দন রইলই। কিন্তু আমার বিশেষ অভিনন্দন যে মানুষটি শুধু জিততেই এখানে আসেনি, জেতার পরেও বারবার আসানসোলে ছুটে এসেছেন। আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভারতবর্ষের একজন গর্ব শত্রুঘ্ন সিনহা এবং তার স্ত্রী পুনম সিনহাকে আমরা প্রত্যেকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমাদের অন্তরে সম্মান জানাচ্ছি। बाबू 4 साल बाद में अगर हमको लेना है तो एक बात याद रखिए, हमारा इधर में यंग लोग कम नहीं है। जो लोग नौकरी मांगते हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही देंगे। हम तो एक सर्विसमैन को लेते हैं, लेकिन एक सर्विसमैन कौन होता है? जो पूरा जिंदगी काम करके आता है। और इधर में 4 महीना ट्रेनिंग मीन्स 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन। আমাদের একটা দুঃখ ছিল, এবারে লোকসভা ভোটের সময় ইলেকশন কমিশন বাইক বাজানো
দিয়েছিল যে মাইকে কোনো সভা করা যাবে না। लड़ते हैं वो मरते हैं और हम लड़ते हैं, हम जीतते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कोई ईसीएल के सोदपुर एरिया में इंटर एरिया शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस चेस कंपटीशन में विभिन्न एरियाज से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ईसीएल के सोदपुर एरिया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंटर एरिया चेस टूर्नामेंट 2021 और 22 का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम एरिया से आए लोगों ने चेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सांकतोड़िया हेडक्वार्टर, सोदपुर एरिया, झांझरा एरिया, श्रीपुर एरिया, सालनपुर एरिया, सतग्राम एरिया, सोनपुर बाजारी एरिया, इन सब एरिया से कुल 23 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सब से आज के विजेता बने सोनपुर बाजारी एरिया के प्रसन्नजीत सिन्हा, सेकंड हुए झांझरा एरिया के अर्नब कुमार घोष, थर्ड हुए सांकतोड़िया हेडक्वार्टर के मुन्ना राम। इस चेस टूर्नामेंट में मुख्य रूप से उपस्थित थे हेडक्वार्टर के जीएमपी एंड आईआर के पवन कुमार श्रीवास्तव, सीएसआर के मनोज कुमार सिंह और सोदपुर एरिया के जीएम श्री एएन नायक जी, एरिया के एचओडी और कोलेरी के एजेंट्स। अच्छा लग रहा है कि ईसीएल में अभी भी जो फिजिकल गेम्स हैं वो बरकरार है, क्योंकि फिजिकल गेम्स अब धीरे धीरे बहुत से कारण से लुप्त होते जा रहे हैं। वीडियो, मोबाइल में गेम्स वगैरह वगैरह जो इत्यादि, जो जिस तरह से नेट की सुविधा बढ़ रही है, ईसीएल के हमारे कर्मचारी उसको अतीत नहीं बनने देंगे। साथ में जीएम वेलफेयर एंड सिंह साहब, सबसे पहले ये हमको जो चेस टूर्नामेंट का सोदपुर एरिया को सौंपा गया था, इसी के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है और सुबह से यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आए थे, जैसे हमको खबर मिला टोटल 23 से आए थे और कुछ पार्टिसिपेंट नहीं आ पाए हैं। जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट आए हैं, जैसे सिंह साहब बोले हैं, लोग आजकल बाकी दूसरे मोबाइल गेम, ये सब गेम में ज्यादातर मानी कि व्यस्त रहते हैं, फिजिकल गेम। और साथ साथ ये जो चेस गेम होता है, ये दिमाग वाला गेम होता है, जनरली माना जाता है, क्योंकि दिमाग से ही, दिमाग जिसका जितना तेज होता है उसी तरीके से चेस में वो भी उसी दिमाग से चलाता है। चलिए, इसी कार्यक्रम का में जो भी ये खिलाड़ी जो जीते हुए हैं, मैं उनको लोगों को बधाई देता हूँ। जो नहीं भी जीते हैं उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि वो लोग अपना आपको ये मत मानिए कि हारे हैं। बाकी जो खेलते नहीं तो उनसे तो कम से कम आप विकल्प तो लेते हैं। उसी के लिए आप लोग को बधाई हो। अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रतिभागियों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो आपका शानदार प्रदर्शन के लिए हम लोग आभारी हैं और आगे भी हम लोग